सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صلوات الله تعالى عليهم أجمعين سبحان یا اللہ خدا آقا کے دیوانوں میں کر لے تو قبول میرے مالک شاہ عبدالباصفا کے واسطے یا عبدال یا حسین یا عبدال یا حسین یا عبدال یا حسین القوم المدد یا سلطان العارفین المدد تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ تجلیہ یہ نئی صبح و شام یا خواجہ ہمارے دین کے حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی بگدہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستان تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہاں مدد کن یا معین الدین چشتی کھول دو سینہ میرا فاتح مکہ آگر شاہ مردان شہر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نائب مصطفیٰ غریب نواز دل بر مرتضیٰ غریب نواز کوئی بدلائے کیا زمانے میں ہے کوئی دوسرا غریب نواز کرم غوث اعظم کرم غوث اعظم ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوث اعظم یہ آنکھیں یہ دل یہ جگر اور یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم حسین و حسن پھول باغ نبی کے اسی پھول کا تو ہے پھل غوث اعظم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم آپ تمامی حضرات لائق مبارک باد ہیں آپ دیکھ رہے منبر نور پہ جلوہ باز آل رسول تشریف فرما ہے یہ محفل کی قبولیت کی ضمانت سبحان اللہ جہاں نبی کی یاد آ جائے سمجھ لو کہ محفل کو اللہ نے قبول کر لیا سبحان اللہ یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی سعادت مندی ہے ایک بات بتا دیں الہ آباد میں ایک بزرگ ہے جن پر سرکار شہباز لامکانی لنگر دو جہانی محبوب یزدانی سرچشم سلطانی شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی ثم بغدادی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کرم ہے صاحب درود قلبی صوفی سلطان میاں صاحب قبلہ آپ اتنے خوش نصیب ہیں چاہے باپ کی شکل میں ہو چاہے بیٹے کی شکل میں ہو چاہے ہماری پردے میں سماعت کرنے والی ماں بہنیں منبر نور پہ جلوہ بار مقدس معزز خصوصیت کے ساتھ نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا عبدالقادر صاحب اور ہمارے نیتا جی صاحب کنوینر جلسہ سرپرست جلسہ سب کچھ وہی ہے اللہ تعالیٰ ان آل رسول کے صدقے میں آج کی محفل ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے آمین آمین سنیے آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا بس ایک جملہ آپ سن لیجئے صوفی سلطان میاں صاحب صاحب درود قلبی وہ کہتے ہیں ابھی جو گزشتہ 11ویں شریف کا مہینہ گزرا ہے یعنی تقریباً 1 سال ہونے والا ہے 10-20 سال نہیں 25-30 سال بھی نہیں گزشتہ 11ویں شریف کے مہینے کی بات صوفی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ مجھے غوث اعظم نے یعنی پچھلے 11ویں شریف میں بشارت میں ایک بات بتائی سبحان اللہ سبحان اللہ
बात सुन लोगे तो आप बैठोगे नहीं, क्योंकि आपके फायदे। कमाल ये नहीं कि आप आए हो, कमाल तो ये है कि नबी ने तुम्हें बुला लिया। सुभान अल्लाह, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट हमारी तबीयत से, और मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह अभी गुज़श्ता जुमा को मदीना शरीफ से हाजिर हुई है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुल्क शाम सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत बिलाल हबशी के आस्थाने पे हाजिर होने वाली है। मैं दुआ करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि अगर आज आप महफिल के इख्तिताम तक बैठे रहे तो इंशाअल्लाह उस बारगाह में जाने के लिए मैं उनकी बारगाह में आपके लिए दुआ करूँगा, है ना। मजमा बोल दीजिए आमीन। मजमा बुलंद आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से सुनिए। सूफी साहब के बिला कहते हैं कि सरकार गौसे आजम ने बशारत में एक बात बताई। वो बशारत में बात क्या है सुनिए। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, सुल्तान मेरी तरफ से लोगों को खुशखबरी दे। वाह 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 वाह। नहीं ऐसे नहीं, हमें मालूम है पूरी ककड़ी खा जाओ आखिर में कड़वी निकल जाए सब जायका। अभी तक आप बोले हो, अब नहीं, अब तो आमद रसूल का वो सुबह शादी का वक्त जिसको जन्नती वक्त कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलोगे, अभी थोड़ी बोलोगे आप। अभी 2024 का इलेक्शन आने दो, इलेक्शन में तो गूंगा बोलेगा। जहां बोलना चाहिए वहां नहीं। साहिब दर्द कल्बी कहते हैं जो नबी के नाम पर बोलेगा वही कयामत के दिन बोले। और हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं जो नबी के नाम पर बोलता है अल्लाह उसकी नस्ल में किसी को गूंगा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोलोगे, अब भी नहीं बोलोगे आप। बस आखिरी बात, या अल्लाह जो अब बोले उसको कैंसर ना। सुभान अल्लाह। हाँ नहीं बोलोगे तो इसका उल्टा भी करना मैं जानता हूं। हाँ बोलना पड़ेगा, यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे। सुनिए सूफी साहब किबला कहते हैं कि सुल्तान मेरी तरफ से खुशखबरी दे। क्या खुशखबरी? कि जब कोई आशिक मगर ईशा की नमाज के बाद मेरा नाम लेता। इस बात को अगर किसी को दरियाफ्त करना है इलाहाबाद जाइए, कादी साहब जानते हैं, सूफी सुल्तान बिया साहब अभी हयात में है, ये बात जाके पूछ सकते हो। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। बैठे हैं, सुनिए बड़ी प्यारी बात। सूफी साहब किबला कहते हैं कि सरकार गौसे पाक ने बशारत में कहा सुल्तान मेरी तरफ से आशिकों को खुशखबरी दे दो कि जब कोई बंदा ईशा की नमाज के बाद मेरा नाम ले। जब कोई बंदा ईशा की नमाज के बाद मेरा नाम लेता है उसके लिए खुशखबरी ये दे दो कि मगरिब के बाद पहले मैं उसका नाम लेता हूँ। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। 2-3 शेर बुजुर्गों के खुसूसियत के साथ कलाम आला हजरत के, एक मतला 2 शेर। नात खानी बहुत आपने समाज कर ली, उतना ही पिलाना चाहिए कि जितना हजम हो जाए, है ना। और सरकार गौसे आजम तो यहाँ तक फरमाते हैं कि नबी का जिक्र उतनी देर तक होना चाहिए जब तक जिक्र की चाशनी लज्जत में कमी आए नहीं होना चाहिए, है ना। अब जग रहे हो, हमको तादाद से मतलब नहीं है, जंग में कागजी अफराज से हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। आप बस जो जहां बैठा रहे, बस थोड़ी सी गुजारिश है कि 10-15 मिनट थोड़ी आप हमको बर्दाश्त कर ले, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा। कलाम आला हज़रत का एक मतला 2 शेर। इजाजत है, इजाजत है। इन आले का बोसा लेते हुए और बुजुर्गों के कलाम से आगाज कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इन आले रसूल के सदके में बुजुर्गों के फैजान से माला माल। आमीन। बस आपसे गुजारिश है कि जहाँ पर कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोल देंगे। सरताज बक़दम है सुभान अल्लाह। तने सुल्तान ज़मन फूल सरता बक़दम है तने सुल्तान ज़मन फूल सरता बक़दम है तने सुल्तान ज़मन फूल लब फूल जाने जाना लब फूल ये दहन फूल दहन फूल बदन फूल
चाहो जाने जाना तुम चाहो तो हो जाए अभी को तुम चाहो तो हो जाए अभी को लब ले इस कबीले का एक शेर सुन ले, उसके बाद मक्ता। क्या कहना, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा शेर है, ईमान ताजा हो जाएगा। शेर सुनिए कि मेरे गुल का पसीना वाला जो मेरे गुल का पसीना मांगे जाने जाना मांगे न कभी न पे चाहे दुल्हन फूल नहीं कभी न पे चाहे दुल्हन फूल। क्या बात है उसे चमन से क्या जब सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जोर से और बुलंद आवाज से या अल्लाह जो आप बोले सुभान अल्लाह वो इसी साल मदीना शरीफ चला जाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इतनी बड़ी दुआ तो कोई 10,000 में भी नहीं है ना। इनाले रसूल सुदगी में आपको दिया जा रहा है। पूरा मजमा बोलो क्या बात उसे चमन से सहरा सैयदा सहरा तैयबा सहरा ताहिरा सहरा है कली जिस में हुसैन हसन जिंदाबाद जिंदाबाद। कली जिस में हुसैन ज़हरा कली जिसे में हुसैन हसन फूल जी लगाकर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलामन अलैका नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 10 मिनट हमारी तबीयत से, ठीक है, उसके बाद आपकी तबीयत। हम्द है उस खालिक के कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़वजल हमें हक बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कलाम बोलता है कुरान मुक़द्दस के 30वें पारे सूरह फद्दुहा की आखिरी आयत करीमा। अल्लाह ताला इस आयत करीमा के फयूज़ व बरकत से हम सभी को माला माल फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कलाम बोलता है जोर से और जोर से। हमने कुरान की अजमत को समझा ही नहीं। फारूक आजम ने जब नबी से कुरान पढ़ा था तो 300 ऊंट खुशी में ज़िबा किया। मौला अली से किसी ने पूछा, हाय अली आप एक दिन में कितनी कुरान पढ़ते हैं? मौला अली कहते हैं 60।
ये तुम नहीं बोलते हो ना, तुम्हारे ना बोलने का ही नतीजा है कि कोई 26 आयत बोलता। बोला करो, नहीं बोलोगे तो न जाने कितने सरफिरे पैदा होंगे कि कोई नोटे को बोलेगा गलत है, कोई ज़बर को बोलेगा गलत है, कोई ज़ेर को बोलेगा। लेकिन तुम बोल के बताया करो कि अभी हमारी शान जिंदा है, कुरान की हर एक आयत लाजवाब। आला हज़रत फरमाते हैं लड़ना है तो दुनिया काफी है, रब से क्यों लड़ते हो? अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई ले। जोर से बोलो। मैंने कहा ना 10 मिनट हमारी तबीयत से, उसके बाद आपकी मर्जी। मजमा बोलो। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंसूर बढ़ाना तेरा। तू घटाए से किसी के न घटाए न घटे, जब चढ़ाए तुझे जिंदाबाद जिंदाबाद न तो कलम खुदा को कोई बदल सकता है, कानून मुस्तफा को कोई बदल सकता है। जब भी लोगों ने बदलना चाहा, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बदलने वाले को ही बदला। बोलो बदला है कि नहीं? जब भी लोगों ने हमला किया, अल्लाह ने है ना, इंशाअल्लाह आज भी बदले। जोर से बोलो। फरमाने मुस्तफा कभी टाला ना जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला ना जाएगा। जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में, कुरान को भारत से निकाला ना जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ना तो कुरान की आयत का कोई जवाब है, ना ही कुरान लाने वाले मुस्तफा का कोई जवाब। जिंदाबाद। और जिस उम्मती के लिए नाज़िल की गई उस उम्मती का भी कोई जवाब। अरे तुम बहुत लाजवाब हो, अगर लाजवाब ना होते तो लाजवाब महफिल में ना बैठते। क्या बात है हज़रत। नबी की महफिल में बैठना भी बहुत बड़ी सादतमंदी है। हक बात। एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं नबी की महफिल में जाया करो तो ये नियत करके जाया करो, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम आना हमारा काम और मंजिले मकसूद तक पहुंचाना आपका काम। जाकर तो देखो, वापस आने से पहले मंजिल मिल जाए। क्या बात है। ये हमें आपको समझ में नहीं आता। जाहिर असल में इंसान जो है ना, वो हर तत्काल काम है ना, कि इधर मैंने दुआ मांगी उधर कबूल तो अल्लाह का। हम आप वो मांगते हैं जो हमें सामने अच्छा दिखता है, मगर रब हमें वो देखता है जो देता है जो हमारे हक में बेहतर। क्या बात। कुरान का ऐलान, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो, अपने परवरदिगार की नेमतों का खूब चर्चा करो। तवज्जो के साथ सुनिएगा। अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। खालिके कायनात नेमत तो न जाने कितनी। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसने हमें इंसान बनाया। क्या ये नेमत नहीं है? हमें वो जानवर बना के पैदा कर देता तो क्या बिगा लेते हम, मगर ये उसका कर्म है। मुस्तफा के सदके में हमें इंसान बनाया। और उसके बाद सबसे बड़ी नेमत यह है इंसान बनाकर नबी का वफादार सुन्नी चाहने वाला। और उसके बाद सबसे बड़ा एहसान यह है शेखुल मखलूकात बनाया। क्या बात। क्या नेमत नहीं है? बहुत बड़ी नेमत। अच्छा, इंसान चाहे जितना खूबसूरत हो, अगर उसकी आंख अल्लाह छीन ले, बताओ उसका हुस्न काम करेगा? इंसान चाहे जितना मोटा ताजा हो, एक पैर ना हो, ये सब उसकी नेमत ही तो है। मगर कुरान कहना क्या चाहता है? रब्बे कदीर की मशीयत क्या चाहती है? अम्मा बेनेमते रब्बिका फहद्दिस, अपने परवरदिगार की नेमतों का चर्चा करो। ए खालिके कायनात, मालिको मौला, नेमत तो बहुत सी है। नेमत जमीन ये भी नेमत है, आसमान ये भी नेमत, अर्श ये भी नेमत, फर्श ये भी नेमत, शरीयत ये भी नेमत, तरीकत ये भी नेमत, मार्फत ये भी नेमत, हकीकत ये भी नेमत। लेकिन खालिके कायनात हम जानना चाहते हैं, हम पहचानना चाहते हैं, मौला तू किस नेमत का चर्चा करवाना चाहता है? अकाबरीन से जब पूछा गया, मुहद्दिसीन से जब पूछा गया, मुफस्सिरीन से जब पूछा गया,
खुतबा से पूछा गया, मुजद्दिदीन से पूछा गया, उलमा से पूछा गया कि वो अम्मा बिनेमत रब्बी का फहम, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। अल्लाह ताला कौन सी नेमत का चर्चा सबसे ज्यादा करवाना चाहता है? काबरीन कहते हैं वो नेमत जिसे नेमते उसे कहा जाता है, वो नेमत जिसे नेमते लाजवाल नेमत कहा जाता है। क्या मतलब? अब चलो पता लगाया जाए। अल्लाह की नेमत तो सब है, मगर नेमत उस्मा किसे कहा जाता है? नेमत लाजवाल, यानी सबसे बड़ी नेमत। उससे बड़ी नेमत कुछ नहीं है, पहले वो बाद में कायनात। चलो पता लगाया जाए। ये खालिक कायनात, ये मालिको मौला हम जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, आंखों से देखना चाहते हैं, अक्ल से समझना चाहते हैं। ये खालिक कायनात, तू अपने रब के तूने ऐलान किया कि मेरी नेमतों का चर्चा कर। कौन सी नेमत का चर्चा करना है? नेमत उस्मा का चर्चा ज्यादा करना है। नेमत उस्मा है क्या? चलो पता लगाया जाए। अल्लाह ने हमें अर्श दिया, मगर ये नहीं कहा, यही कहा ये अर्श है हमारे लिए, ये भी नेमत है, मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ने हमें फर्श दिया, मगर ये भी नेमत है, मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ने हमें जन्नत दिया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ने हमें जमीन दिया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ने हमें आसमान का शामियाना दिया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ने हमें औलिया दिया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ने हमें खुतबा दिया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ने शरीयत का रास्ता बताया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ने हमें तरीका दिया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ने मारिफत दिया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ने हकीकत दिया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ने नमाज जैसी दौलत दी, ये भी नेमत है, मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ने कुरान जैसी अनमोल किताब दिया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उस्मा नहीं। अर्श आज़म अर्शुल्लाह कलम दिया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उस्मा नहीं। और करीब से बता दूं, इमाम आज़म को दिया हमारे लिए, ये भी नेमत है, मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ने मुफ्ती आज़म को दिया, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा नहीं। हुजूर मुहद्दिस पाक को दिया, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा नहीं। तमाम औलिया को दिया, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा नहीं। हे मालिक मौला, हम जानना चाहते हैं, सब तो नेमत है, नेमत उस्मा क्या है? रब्बे कदीर ने कहा, ए दुनिया वालों सुनो, अम्मा बिनेमत रब्बे का फहद, आसमान से लेकर जमीन तक सारी कायनात नेमत है। मेरा महबूब नेमत उस्मा है, मुहम्मद रसूलुल्लाह नेमत उस्मा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादत रहमते आलम हुजूर पीरे तरीक़त मुस्तफा नेमत उस्मा। अरे मुस्तफा के ही सदके में तो सब कुछ मिला। बेशक सबसे बड़ी नेमत, वाह वाह, सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा है। ये जो बैठ रहे हो ना, तुम्हारे चेहरे जगमगा रहे हैं ना, नेमत उस नेमत उस्मा का, वो नेमत उस्मा ना आते ना, कायनात की कोई शय ना। आले रसूल बैठे, आप पूछिए, हदीस कुदसी वो है, कलाम खुदा का, जबान मुस्तफा की। लौला का लंबा खलक दुनिया महबूब, अगर तुमको पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं दुनिया को भी ना बना। उसी हदीस कुदसी में फरमाता, महबूब अगर तुमको पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं आसमान को भी ना बनाता, अपना रब होना भी जाहिर ना करना। क्या मतलब? जो भी मिला नेमत उस्मा की बदौलत मिला। तभी तो शायर कहता है, मुख्तार कायनात है, जो चाहो मांग लो। वाह वाह, अरे जोर से बोलो, मुख्तार कायनात है, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। नेमत उस्मा का एहसास कयामत तक अगर हम चुकाना भी चाहें तो जिंदगी गुजर जाएगी, मगर उस नेमत उस्मा का एहसान, उल्ला ज़वाल नेमत, मुस्तफा जाने रहमत। रब ने कहा, महबूब मैं चाहता हूँ सब कुछ सबको मिले, मगर महबूब तुम्हारे वसीले से। वो अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस,
अपने परवरदिगार की नेमतों का चर्चा करो। मुस्तफा सबसे बड़ी नेमत बनकर दुनिया में आए, ऐसी नेमत बस आमद रसूल के हवाले से 10 मिनट और सुन लीजिए, इजाजत है? सुनोगे? आप नहीं भी कहोगे तब भी मत समझ गया। अब इसलिए आया ही हूँ, है ना। हमारे हजरत ने कहा था कि आपको कब बोलना है, हमने कहा आना हमारा काम है, कब बुलवाना है आप। और नबी की महफिल में अपनी मर्जी नहीं देखी जाती, वहां तो मुस्तफा का करम देखा जाता है। मुस्तफा का करम जिस पे जब हो जाए, जितना हो जाए, है ना, ये बहुत बड़ी, ये भी बहुत बड़ी नेमत। मुस्तफा का करम जब होता है ना, तो चाहे 1 बजे बोलो, चाहे 10 बजे बोलो, चाहे 12 बजे बोलो, चाहे सुबह शादी के कोई सुने या ना सुने, कोई महफिल में रहे या ना रहे, जिसकी महफिल है उसकी हाजिरी जरूर होगी। मुस्तफा नेमत उस्मा, अब कैसे नेमत उस्मा है? अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी कहते हैं, मुस्तफा उस नेमत लाजवाल, उस नेमत उस्मा के आने से पहले इस दुनिया का मिजाज क्या था, और नेमत उस्मा जब दुनिया में तशरीफ लाए तब दुनिया का मिजाज कैसे बदल गया। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी कलम बंद करते हैं, तवज्जो के साथ सुनिए। रसूल अल्लाह से पहले अजब दुनिया का मंजर था, बुतों की जाहें आया इस खलीलुल्लाह का घर था। वहां पर आग पानी खाक को मसजूद समझे थे, वहां लातो हुबल को ही बशर्मा बूद समझे थे। न वो दुनिया से डरते थे, न वो उक़बा से डरते थे। जो होती लड़कियां पैदा तो जिंदा दफन करते थे। नेमत उस्मा के आने से पहले ये हाल था, मगर सुनो आगे। बढ़ा जब हद इम्कां से जुल्म, उस खालिक को जोश आया, बना रखा था एक आईना जिसका था ना साया। जनाबे आमना के घर चिरागे दूर को भेजा, हुआ जुल्मत का दारा शंसरापा नूर को भेजा। हर एक जर्रे खुशी की माँ जो में अंगड़ा लेते थे, वो आए जिनके आने का नबी पैगाम देते थे। और सखी है हाथ कुछ से नहीं लौटाते साइल को, लबे नाजुक से देते हैं तो आए अपने कातिल को। यही दुनिया का आलम ये था। यही इंसान जब अपने मकान से बाहर निकलता, अगर समंदर को देखता तो यही इंसान बोल देता, ऐ समंदर तू हमारा माबूद। और समंदर को देखने के बाद यही इंसान जब हिमालय पर्वत को देखता तो यही बंदा बोलता, ए हिमालय तू हमारा माबूद। चांद को देखता, ए चांद तू हमारा माबूद। सूरज को देखता, ए सूरज तू हमारा माबूद। मगर ऐसे नाजुक आलम में मेरे आका की विलादत होती है, और जैसे ही मेरे आका की विलादत 12 रबीउल अव्वल की बारात आई, बरोज दोशंबा सुबह शादी के वक्त सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान में हजरत आमना खातून के घर में एक बच्चे की विलादत होती है, जिसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। जैसे ही मेरे आका की विलादत होती है, नबी के आने से पहले मामला दूसरा था, मगर जब नेमत उस्मा को अल्लाह ने भेजा तो मक्के की गली गली महकने लगी, मक्के के दो दीवार महकने लगे, मक्के का जंगल जंगल महकने लगा, मक्के का सहरा सहरा महकने लगा। अभी के एक दिन पहले मामला ये था, मक्के की गलियां सूखी थी, मक्के के दीवार सूखे थे, मक्के के दरख्त सूखे थे। मगर जैसे ही नेमत उस्मा की आमद हुई, मक्के में इनकलाब पैदा हो गया, मक्के में रहमत की बारिश होने लगी, मक्के के लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट आने लगी, कलियां खिलने लगी, कलियां मुस्कुराने लगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरदार कुरैश फरमाते हैं, मेरा मकाम जियारत का बना हुआ था। ज़ौक़ दर ज़ौक़ सरदार कुरैश, बड़े बड़े दानिशवर, बड़े बड़े चौधरी लोग हजरत
हजरत आमना खातून के घर में हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मुबारकबाद पेश करने आए। ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी पैदाइश का ये आलम कि मक्के की गली गली महक रही है, मक्के का जंगल जंगल महक रहा है, मक्के का सहरा सहरा महक रहा है। ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम भी कुछ बता सकते हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ए मक्के वालों सुनो, ए मक्के बड़े बड़े लोगों सुनो, तुमने तो इतना ही देखा है कि मक्के की गली गली महक रही है, मक्के का जंगल जंगल महक रहा है, मक्के का सहरा सहरा महक रहा है, मगर अभी अभी अब्दुल मुत्तलिब ने जो देखा है वो तुम में से किसी ने नहीं देखा होगा। ये सरदार अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे, मक्के के चौधरी लोग कहने लगे, मक्के के रईस लोग कहने लगे, बताओ तो सही ए अब्दुल मुत्तलिब, तुमने क्या देखा? कहा, जैसे ही मेरे घर में विलादत हुई मैंने हजरत आमना खातून से उस बच्चे को गोद में लिया और लेने के बाद अरब का ये दस्तूर था कि बच्चा जब पैदा हो जाए, पैदा होने के कुछ लम्हे बाद उसको काबे का तवाफ कराया जाता था, काबे का दीदार कराया जाता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ए लोगों, तुमने तो इतना ही देखा है, मक्के की गली गली महक रही है, मगर मैंने जो देखा है सुन लोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुमने क्या देखा है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, मैं भी दस्तूर के मुताबिक कि चलो बच्चे को काबे का दीदार करा दिया जाए, बच्चे को काबे का तवाफ करा दिया जाए। जैसे ही मैं गोद में लिया और लेने के बाद मैं दीदार के लिए काबे का तवाफ के लिए इस बच्चे को लेकर चला। जब तक मैंने काबा नहीं देखा था तब तक तो मैं चला जा रहा था, और जैसे ही मेरी नजर खाने काबा पे पड़ी, अब्दुल मुत्तलिब को ये फैसला करना दुश्वार हो गया कि मैं जा रहा हूँ या काबा खुद मेरी तरफ आ रहा है, या काबा खुद मेरी तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादत रहमते आलम, सरकार की आमद, हुजूर पीरे तरीक़त आला हज़रत मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्र बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिल के सजदे को मेहरा भी काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। वो अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, अपने परवरदिगार की नेमतों का चर्चा कर। आखिरी बात सुन लीजिए, टाइम ज्यादा हो गया है ना। अभी हुजूर आले रसूल क़िबला तशरीफ फरमा है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हजरत भी कुछ दुआइया जुमला हमें और आपको नसीहत आमेज बातें। बस आखिरी बात, मेरे आका की विलादत हुई, बेसहारे कहने लगे हमें सहारा मिल गया, बेशक बेचैन कहने लगे हमें चैन मिल गया, बेकरार कहने लगे हमें करार मिल गया, सब साथियों ने कहा हमें जाम मिल गया, और सब नबियों ने कहा हमें इमाम मिल गया। आमदे रसूल के मोहब्बत में आने वालों, अपने मुक़द्दर पे नाज करो। ए मेरी माँ बहनों, तुम भी आई हो, तुम्हारा ये वक़ार उसी नेमत उज़्मा के सदक़े में मिला है, वरना तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी। तुम्हें मालिकाना हक जो आज मिल रहा है ना, ये उसी नेमत उज़्मा का सदका है, उसी नेमत उज़्मा का एहसान है। एहसान मानो मेरे नबी का कि तुम्हें मालिकाना हक मिल रहा है, तुम्हारा वक़ार, तुम्हारी इज्जत बढ़ गई उसी नेमत उज़्मा के सदक़े में। तो जहां में काम आए जो दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे लिए भी एक पैगाम, तुम्हारे लिए पैगाम ये है, इस्लाम में तुम्हारा भी सबसे बड़ा किरदार था। जोर से, और इतना बड़ा किरदार सैयदा ज़ैनब से पूछो,
मखदूमा ज़ैनब जानते हो? बस आखिरी बात है ना, बोलना तो और कुछ था लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला और टाइम से, क्योंकि ये जो बातें हो रही हैं ये 12 बजे की पहले की गुफ्तगू है। अच्छा, मेरा ये मिजाज नहीं है कि हमको पहले बोलना है, बीच में बोलना है, ये तो जलसे वालों का काम है। एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं कि कतई ये सब जहन में रखना ही ना चाहिए, जब मुस्तफा चाहेंगे तभी बोलो। जिंदगी का एक पैर मुस्तफा के नाम कीजिए, मुस्तफा के नाम कीजिए, और फर्श है तेरी नजर। थक गए हो आप? थकना हमको चाहिए। जिस अंदाज से मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट बोल के बताओ, फेफड़ा ना चिथड़ा हो जाए। ये तो गौसो ख्वाजा का करम है, बेशक तुम्हें सुमना का फैजान है जो है ना, यहाँ बोला नहीं जाता, यहाँ बोलवाया जाता। हक बात है, हक बात है। या नबी यही है इल्तिजा, अपना कुर्ब कीजिए अता, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी यही है इल्तिजा, अपना कुर्ब कीजिए अता। मैं रहूं करीब आपके, ऐसा इंतजाम कीजिए, ऐसा इंतजाम कीजिए, जिंदगी का मुस्तफा के नाम कीजिए, मुस्तफा के नाम कीजिए। ओ मेरी माँ बहनों, आई हो तो इस महफिल मिलाद से एक पैगाम लेकर जाओ। सैयदा ज़ैनब किसका नाम? मौला अली की बेटी का नाम। मगर जानते हो, एक बुजुर्ग लिखते हैं कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब विसाल हो रहा था, बड़ी प्यारी बात, इजाजत है? सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में किताबों में आता है, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल होने लगा। सैयदा फातिमा ने मौला कायनात को बोला, ऐ मेरे सरताज, एक बात की अहद को दीजिए, एक बात का वादा कीजिए कि मेरे इंतकाल के बाद आप ज्यादातर अपने घर आना, तो दिन के उजाले में मत आना, रात में ज्यादा। कौन कह रहा है? सैयदा फातिमा कह रही है। किससे कह रही है? अपने शौहर मौला अली से। यार, अली के नाम पर तो पत्थर भी बोलते हैं। आप कैसे हो कि इंसान हो के नहीं बोले? कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है, कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है, अली का नाम सुनते अब भी खैबर कांप जाता। सैयदा ने फरमाया, है मेरे शौहर, मेरे सरताज शेर खुदा फातेह खैबर, मुझसे वादा कीजिए कि मेरे इंतकाल के बाद जब घर में आओगे तो दिन के उजाले में कम आना, रात में ज्यादा आना। मौला अली कहते हैं, फातिमा ये कैसा अहद ले रही है, इसकी वजह क्या है? अल्लाह अल्लाह। कहा, मेरे शौहर सुनो, आज जब आप, अभी मैं जिंदा हूँ, आप भी हयात में, मगर आपकी बेटी ज़ैनब के पर्दे का ये हाल है कि जब घर में आप आते हो तो ज़ैनब मेरे पीठ के पीछे छिपने लगती है। मेरा इंतकाल हो जाएगा, आप दिन में आओगे तो मखदूमा ज़ैनब को छुपने की जगह कहाँ? अल्लाह अल्लाह। लिहाजा मेरे विसाल के बाद आप जब कभी आना तो रात के अंधेरे में आना, ताकि आपकी लाडली बेटी सैयदा ज़ैनब को छिपने में कोई परेशानी ना हो। ये वो ज़ैनब है मेरी खातून, तुम लोग हो, मार्केट में तुम जाओ बिला उज़्र, तुम मैं मना नहीं करता, भले आप मेरी बात को सुनना या ना सुनना, भले बोलाना चाहे ना बोलाना, मगर कयामत के दिन आप उज़्र नहीं पेश कर सकते। या अल्लाह, हमें कोई बताने वाला नहीं मिला। कैसे लोग आमदे रसूल में आए हो, मेरी माँ बहनों तुम भी आई हो तो कुछ लेकर, ऐसा नहीं कि ये सब बातें मर्द ही के लिए बताया जा रहा, तुम भी इसके हक। आज तुम्हारे पास बहाना मिल जाता है, मौलाना साहब क्या बात बताएं, हमारे पास टाइम नहीं, बच्चों में नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? 2 4 5 6, इतना ही ना? सरकार गौसे आजम के 49 हजरत बैठे, पूछे लड़की लड़का मिला के 49 बेटी, और सब नमाजी।
बहुत होशियार हो, नमाज का नाम ले लिया, आप थोड़ी सुभान अल्लाह बोलोगे। हमें मालूम है। दावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो। अगर हुसैनी हो तो यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक कोई अब खामोश नहीं रहेगा। मजमा बोलो और जोर से। दावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो। दावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो। कुदूरतों को मिटा दो अगर हुसैनी हो। जोर से बोलो, जोर से। या अली कुदूरतों को मिटा दो अगर हुसैनी हो। इमाम इमाम से जल रहा है, डॉक्टर डॉक्टर से नफरत, मौलवी मौलवी से नफरत, शायर शायर से नफरत, नकीब नकीब से नफरत, पड़ोसी पड़ोसी से नफरत, और कहेगा हम हुसैनी। बताओ तुम्हारा का हुसैनी का काम है नफरत? नहीं। मुतालबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो। तुम्हें सर नहीं कटाना, जिसको कटाना था वो कटा के चले। तुम्हें क्या करना है वो सुनो। मुतालबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो। नमाज पढ़े के बता दो अगर हुसैनी हो। नमाज पढ़े के बता दो अगर हुसैनी हो। और एक पैगाम नौजवान के लिए। जुआ शराब की नापा की आदतों को तुम्हें मुआशरे से हटा दो अगर हुसैनी हो। मुआशरे से हटा दो अगर हुसैनी हो। 15-15 हजार का मोबाइल बच्चों को देते हो, बच्चियों को देते हो। मैं मोबाइल का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर सुनो, जहां मोबाइल देते हो 20,000 का, ऐ मेरी माँ बहनों तुम भी पकड़ी जाओगे कयामत के दिन। ए मेरे नौजवानों तुम भी पकड़े जाओगे कयामत के दिन। कैसे पकड़े जाओगे सुनो। मोतान दावतों को बुला दो अगर हुसैनी हो। तुम्हें जरा सी मोहब्बत है अपने बच्चों से। या अल्लाह जो अब बोले उसका हश्र करबला वालों के साथ। तुम्हें जरा सी मोहब्बत है अपने बच्चों से। उन्हें कुरान पढ़ा दो अगर हुसैनी हो। उन्हें कुरान पढ़ा दो अगर हुसैनी हो। उन्हें नमाज सिखा दो अगर हुसैनी हो। आखिरी शेर। शादी का मामला आता है, सबसे पहले बच्ची बाद में देखते हैं, रिश्ते वाले बाद में देखते हैं। पहले लड़की का बाप लड़के का बाप कहता है जी सुनते हो, बहू बाद में देखेंगे। 80-90 हजार की गाड़ी है कि बात कड़वी लगेगी मगर सोचना तन्हाई। पूछा जाए तो कभी तुम्हारे खानदान में कोई बैलगाड़ी भी न चलाया, और शादी होते ही तो इतनी फरमाइश करते हो। सुन लो एक शेर। मेरे रसूल की सुन्नत समझ के लोगों किसी की मांग सजा दो अगर हुसैनी हो।
किसी की मांग सजा। बड़ी देर से देख रहा था, एक आदमी ने नारा इधर से लगाया और एक आदमी ने इधर से। ऐसा लगता है इनको किराया देके बुलाया गया। और किसी को नारा नहीं याद है? अब एक शेर मैं सुनाता हूँ। या अल्लाह, जो अब नारा लगाए, सारे जितने कुर्सी में बैठे, जितने इधर बैठे, जितने पीछे बैठे, जितने नीचे बैठे, सबको लगाना। या अल्लाह, जो अब नारा लगाए मौला अली के सदके में, मौला वो इसी साल मदीना शरीफ, करबला शरीफ, नजब, अशरफ, बगदाद मोहल्ला की हाजिरी मयस्सर हो जाए। अब देखना यह है कि कौन कौन इन बारगाहों में हाजिरी चाहता है। अगर वाकई में हाजिरी की मुतमन्नी हो तो यहाँ से वहां तक जब शेर पूरा हो जाए, अभी नहीं, जब शेर मुकम्मल हो जाए, सबको, एक दो नहीं, सबको। अब देखना यह है कि कैसे हुसैनी हो। अगर सच्चे अहले बैत के आशिकों आले रसूल को गवाह बनाकर सारे लोगों को खड़े होकर नारा लगाना है। अब देखना यह है कि आप कैसे आले रसूल के सामने अपने आप को गवाह बनाते हो। शेर सुनो। तुम्हारे रे कहाँ गई? वाह वाह, सबको लगाना है, तैयार हो जाइए। तुम्हारा नाम एक ताकत कहाँ गई यारो? ज़माने भर को हिला दो अगर हुसैन हो। नारे रिसालत, दत्न विलादत रहमते आलम, सरकार की आमद, सरकार की आमद। हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर पीरे तरीक़त, फैज़ाने मखदूमे सिमना। ज़माने पे कहला दो अगर हुसैन हो। बच्चे की फरमाइश है, उसको भी सुन लो। मिलादुन नबी की महफिल है। और एक बात बता दूं, बाज लोग कहते हैं साहब नबी की विलादत का है, अहले बैत का जिक्र करते हैं। आका फरमाते हुसैन मुझसे है। मुसलमानों खुदा के वास्ते होशियार हो जाओ, बहुत सोए मगर अब तो जरा बेदार हो जाओ। हिला दो नारे तकबीर से बातिल की बुनियाद, अली मुर्तजा के हाथ की तलवार हो जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अम्मा बिनेमते रब्बिका फहफ़िज़, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है? मुस्तफ़ा है ना। सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत। अभी हुजूर जुमा को मदीना, यानी 2 या 3 अगस्त को, ये सितंबर चल रहा है ना, इसी सितंबर 2-3 सितंबर को खाने काबा की तरफ 79 नंबर गेट से हम अंदर जा रहे थे। एक आशिके रसूल बाहर आ, जिसकी आवाज पूरी दुनिया की दिल की धड़कन बनी हुई। क्या बात, बता दूं कौन था आशिके रसूल? बता दूं? अरे बोलो। जिसने सबसे पहले ये कलाम पढ़ा है, आखिरी उम्र है क्या नक दुनिया देखो, अब तो बस की धुन है कि मदीना देखो। तसव्वुर अली अत्तारी से मुलाकात, सलाम किया, मुसाफा किया। हमने कहा आप तसव्वुर अली? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से? हमने कहा हम इंडिया से आए। कहा क्या बताएं, हिंदल वली की बारगाह में हम भी चाहते हैं हाजिरी देने के लिए, मगर गवर्नमेंट वीजा इशू नहीं कर रहे, पास नहीं कर रहे, इसलिए दुआ कीजिए कि हम भी अताए रसूल की बारगाह में हाजिरी दें। और एक आवाज तो ऐसी दिल की धड़कन बनी हुई है पूरी दुनिया में, जब जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, बच्चा हो चाहे चच्चा हो, बूढ़ी हो चाहे बूढ़ा हो, बच्ची है चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे शादी वाले हो चाहे बगैर शादी वाले हो, है ना, तालिबे इल्म हो चाहे मदरसे के हो, चाहे ज़ाकिरीन हो चाहे सामईन, पूरी दुनिया में जब रबीउल अव्वल का चांद निकलता है, एक आवाज अजीब से समा लेकर गूंजने लगती है। आप जानते हो आवाज, चाहे मार्केट हो चाहे बस्ती हो, चाहे बस स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो, चाहे जहां हो, मगर ये आवाज के दीवानी पूरी दुनिया है। बता दूं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह,
वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चारों तरफ नूर छाया, आका का मिलाद आया, खुशियों का पैगाम लाया, आका का मिलाद आया। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अहला व सहला, मरहबा मरहबा, नूरुल आला। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौला करीम हमें खूब खूब मिलाद करने कराने की तौफीक अता फरमाए। नबी की मिलाद खूब किया करो, खूब करवाया भी करो, खर्च भी किया करो, क्योंकि इसमें जो खर्च करोगे, हजरत बैठे हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं, अगर मुझे उहद पहाड़ के बराबर सोना मिल जाए तो मैं शबे विलादत आमद रसूल की रात में मैं सब कुर्बान कर दूं। सुभान अल्लाह। हम तुम 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया देते तो 10 बार सोचते, अकल लगाते हैं, दे कि न दे ना। मगर यहाँ तो ऐसा खजाना है कि नबी की मिलाद एक ऐसी हसीन दौलत है, एक ऐसी हसीन नेमत है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मौला करीम हम जब तक जिंदा रहें, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नबी की मिलाद मनाया कौन नहीं है ना, सबों ने। और एक बात बता दूं, नबी की मिलाद ना होती किसी की मिलाद, ये आमद रसूल का सदका है, पूरी दुनिया में इसके रसूल का झंडा लहरा रहा है। मौला करीम बोलने में कसदन सैफन लफ्ज़न कोई गलती हो गई, मौला इन सादात इकराम की मौजूदगी में मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन